درمیان میں ریاض الحسن افندی صاحب کا توندی میں جعفری کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور محفل کا عروج اپنی رواں دواں پر ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب وجاد علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ایکس کارپوریٹر AIMIM سے گزارش کروں. وجاد علی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم المقام عزت مآب مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب سرپرست تنظیم، ہم جانتے ہیں کہ آج سارے عالم اسلام کے اندر جشن ولادت رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے، اور حیدرآباد بر صغیر کا وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کا بول بالا رہا ہے اور قائم بھی رہے گا انشاءاللہ. ہر مسالک کی جانب سے، ہر تنظیموں کی جانب سے، ہر قوم کی جانب سے جشن ولادت رحمت للعالمین منایا جاتا ہے. یقیناً آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے تمام انسانوں کے لیے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بنا کر بھیجا ہے. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے مکے کو مکرم بنا دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے یثرب کو مدینہ اور مدینہ کو منور کر دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے بلال حبشی کو موذن اسلام بنا دیا. آج ہم اس نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جو افضل الانبیاء تو تھے ہی اور اپنی امت کو بھی تمام امتوں میں افضل بنا دیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب بنا کر نازل کیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی بنا کر بھیجا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کئی اسماء و القاب سے مخاطب کیا، جیسے قرآن، فرقان، برہان، مبین، نور، کتاب، ہدا، ذکر و شفا فرمایا. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اسماء و القاب سے مخاطب کیا، جیسے محمد، احمد، نبی، رسول، امی، شاہد، منیر، سراج، یاسین، مدثر و مزمل فرمایا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی ہم آپ کو تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. آج دنیا پریشان ہے کہ قرآن کو 1400 برس سے لے کر آج تک اس پر ریسرچ کیا جا رہا ہے. شاید دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہ ہو جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان مسلم بھی پڑھتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کے ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حروف پر PhD کی جاتی ہے، اور اس پر تمام یہود و نصارہ، کفار و مشرکین ریسرچ کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے زیر و زبر میں تبدیلی لائی جائے. اور حالیہ ہندوستان میں بھی 26 آیتوں پر حذف کرنے کا مطالبہ کیا گیا. روز ازل سے اس بات کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی قرآن کی وہ آیت ہمارے سامنے ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اب کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس چیز کی اللہ حفاظت کرنے والا ہے کائنات کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آج تک گستاخیاں کی جاتی رہیں، الزامات لگائے جاتے رہیں، بہتان تراشیاں ہوتی رہیں، لیکن آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا. وہی مقام، وہی مرتبہ آپ کا بلند رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلند کیا تو اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا ان کے مقام کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے تو آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، طاقت کی دور سے پھیلا، ظلم و زیادتی سے پھیلا، بلکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں. تو آپ کے اخلاق کریمہ و حمیدہ سے اسلام پھیلا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو عرب کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے، آپ چونکہ بیوہ خاتون تھیں، آپ سرمایہ دار تھیں، تاجر تھیں، آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، بلکہ محمد بن عبداللہ کے لیے نکاح کو بھیجا. تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد بن عبداللہ پر قرآن نازل ہونے والی ہے اور سرکار صاحب قرآن ہونے والے ہیں. محمد بن عبداللہ کو امام نبوت ملنے والی ہے. محمد بن عبداللہ کو
शरीयत मिलने वाली है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खातिम नबीन होने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन होने वाले हैं, आप ताजदार मदीना होने वाले हैं, आप फातिह मक्का होने वाले हैं। आपको ये नहीं मालूम था कि आप इमामुल अंबिया होने वाले हैं, आप साहब मेराज होने वाले हैं, आप फातिह मक्का होने वाले हैं। अगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम था तो ये मालूम था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह आबिद है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह शाकिर है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह आदिल है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्लाह के नेक बंदे हैं, और आपने इस बुनियाद पर आपसे निकाह किया कि आपके अखलाक बुलंद है। तो आज इस दुनिया ये कोशिश कर रही है कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आज यकीनन जरूरत इस बात की है कि बेहतरीन उन्वान रखा गया द यूनिटी ऑफ वीक। अभी पेशवर मुखर्री ने बड़े जामे अंदाज में फरमाया कि आज सारी दुनिया के अंदर इत्तेहाद की जरूरत है। अगर कलमा है तो मुसलमान है, अगर कलमा है तो बरेलवी है, अगर कलमा है तो देवबंदी है, अगर कलमा है तो शिया है, अगर कलमा है तो मेमन है, अगर कलमा है तो खानखा है। आज सब है तो कलमा है, तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वातिसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और इसमें तफरीका ना पैदा करो। यही चीज आज दुनिया परेशान है कि मुसलमानों को अगर मिसमार करना है, खत्म करना है, जलील रुस्वा करना है, तो इनके अंदर से इत्तेहाद को हटाया जाए, मसले की झगड़ों को पैदा किया जाए, छोटी छोटी बातों पर लाकर उलझाया जाए, और इनकी आपस में इख्तिलाफात के जरिए से हम फतह हासिल कर सकते हैं। वरना उन लोगों ने कई गज़वात देखे, कई जंगें देखी, कई शोधा को देखे, कई फातिहीन को देखे, सबसे बड़ा मारेका करबला को उन्होंने देख लिया, लेकिन कहा कि ये मुसलमान डरने या झुकने वाले नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर को कटा दिया, लेकिन सर को झुकाया नहीं यजीदियों के सामने। उन लोगों ने देख लिया उनका हौसला कि ये होने वाला काम नहीं है, लिहाजा ये और उनके चाहने वाले कभी झुकेंगे नहीं, सर कटा देंगे लेकिन कल झुकाएंगे नहीं। तो ये कैसे किया जाए? इनके अंदर तफरीका पैदा किया जाए, सलमान रश्दी को पैदा किया जाए, तस्लीमा नसीन को पैदा किया जाए, वसीम रजवी को पैदा किया जाए, और शरीयत और इस्लाम के खिलाफ इनसे उगलाया जाए, और इनके अंदर आपसी इख्तिलाफात को पैदा किया जाए। आज देखिए आलम इस्लाम किस तरफ जा रहा है। 57 ममालिक आलमी तौर पर हैं। रोज फिरात अली शुजा साहब खबरें पढ़ते हैं, बड़ी दिली तकलीफ होती है कि इसराइल ने फलस्तीन पर हमला कर दिया, इतने मासूम बच्चे जान बहक हो गए, ईरान में ऐसा हो गया, इराक में वैसा हो गया, खजाफिया में वहां पर ये हो गया। इस तरीके से आलमी खबरें पढ़ते हैं, और सऊदी अरब के ताल्लुक से पेशवर मुखर्री ने कहा कि कुफर वहां दाखिल हो चुका है, कुफर दाखिल हो चुका है। मंदिरों के लिए, गैरुल्लाह की इबादत के लिए जगह दी जा रही है, खवातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं, खवातीन को बाहर लाया जा रहा है, क्लब खोले जा रहे हैं, वहां एक सारी दुनिया के अंदर अपने आप को सेकुलर बताने की कोशिश की जा रही है। और आज कैसे माहौल वहां तब्दील हो रहा है। ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह वेटिकन की तरह वहां एक इबादत का मखसूस मुकाम है, तुम काबतुल्लाह को उतना महासिरा करके बना लो और सारे सऊदी अरब को आजाद छोड़ दो। ये किस बात की साजिश है? ये किस दिन का इशारा है? आप देख सकते हैं आज हिंदुस्तान जो हालात से गुजर रहा है वो आपके सामने। सबसे बड़ा तारीखी और सियाह दिन हमारा रहा वो 6 दिसंबर 1992 रहा, जहां हमारी अजीम और खदीम इबादतगाह को दिन दहाड़े सारे आलम इस्लाम के सामने शहीद कर दिया गया। मुसलमान मासूम बच्चे की तरह देखता रहा, जिसका तरह उसका खिलौना तोड़ दिया जाता है। कुछ नहीं किया गया, मुसलमान खामोश रहे। मुसलमानों के सामने अल-ऐलान मस्जिद को शहीद कर दिया गया और हम तमाशाई बनकर रहते रहे। सितम ज़र्फी ये हुई कि जो पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वाले थे उनके सीने और सरों पर गोलियां चलाई गई। सूरत में माँ बहनों को बढ़ाना घुमाकर वीडियोग्राफी की गई। बंबई के अंदर फसाद बर्पा किया गया। जो मुसलमान रात में करोड़पति बनकर सोया था, सुबह उठा तो फुटपाथ पर नजर आया। इसी हैदराबाद के आबिद पे नमाज पढ़ने वालों को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया और उनको जेल की जिन्नत बना दी गई। महाराष्ट्र के अंदर गिरफ्तार किया गया और जेलों में डाल दिया गया। फिर उसके बाद से इन लोगों के फिरका परस्तों के अज़ाइम बुलंद हुए। इन्होंने नदवतुल उलमा पर धावा किया, इन्होंने देवबंद पर धावा किया, फिर इन्होंने 2002 के अंदर गुजरात में बदतरीन फसाद किया। 3 महीने तक गुजरात जलता रहा, इंसानियत दम तोड़ती रही, दुनिया तमाशा देखती रही, लेकिन कोई गुजराती मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्किस बानो के 14 अफराद खानदान को जिंदा जलाया गया। उस हामिला खातून का पेट चीरा गया, उसके शौहर का कत्ल कर दिया गया। शेख सैराबुद्दीन का कोई पुरसा निहाल नहीं रहा। अजायम बढ़ते गए, ये लोग आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि पार्लियामेंट में ये लोग बरसर इख्तिदार आए और इन्होंने अक्सरियत हासिल की। तो उसके बाद लोगों ने बाबरी मस्जिद के फैसले को लाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो हमारे खिलाफ आया 2010 के अंदर। फिर 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया तो आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला दे दिया गया। मुसलमान 20 से 25 करोड़ की आबादी में रहने वाले खामोश रहे और हर बार हर उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम दानिश्वर, तमाम मुसलमानों के तबकों ने यही कहा कि हमें अदालिया पे भरोसा है, हम अदालिया के फैसले को कबूल करने के लिए तैयार हैं। शायद मुसलमानों की ये कमजोरी थी या मजबूरी थी, समझिए, हमने अदालिया पे भरोसा किया और कह दिया कि अदालिया फैसला करेगी। अदालिया ने क्या फैसला किया? हमारे खिलाफ आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को दे दिया गया। फिर उसके बाद शरीयत में जायज़ है ट्रिपल तलाक। तलाक एक ऐसा हलाल अमल है जो सरकार अल्लाह तबारक व तआला को नापसंदीदा अमल है।
नागजीर हालात में शौहर बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन हलाल चीज़ों में अल्लाह को ये नापसंदीदा चीज़ है और दे सकते हैं, इसमें गुंजाइश है। सूरह तलाक कुरान मजीद में आया है, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, लेकिन उस पर पाबंदी आयत की गई। तलाक को क्रिमिनल करार दे दिया गया, एक्ट बना दिया गया कि कोई शौहर चाहते हुए भी तलाक नहीं दे सकता है। ये रास्त खुल्लम खुल्ला हमारी शरीयत के अंदर मदाखलत है। फिर उसके बाद गाय, जो सूरह बकरा जिसमें 286 आयतें हैं, कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, मक्की कई आयतें इस सूरत मुबारका के अंदर नाजिल हुई हैं, कई अहकामात सूरह बकरा के अंदर आए हैं और बकरा गाय का कुरान के अंदर जिक्र है। सूरह बकरा गाय का जिक्र है, चौपाए खाने का हुक्म है, हमको हमारे लिए जायज है, लेकिन उसको क्रिमिनल करार दे दिया गया, नाजायज करार दे दिया गया, इलीगल करार दे दिया गया और इस गाय कशी के नाम पर 100 से ज्यादा बेकसूर लोगों को मॉब लिंचिंग के तहत कत्ल कर दिया गया। अखलाक अहमद को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, तंजील को मारा गया। आज सारे हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर आज ये वाकयात हो रहे हैं। एक जानवर को भी नहीं मारा जाता, सड़कों पर घसीट कर इस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है। हमारा कसूर क्या है कि हम अल्लाह के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह ने जो चीज़ जायज़ करार दिया उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटाया गया वो आपके सामने है। और फिर आज उसके बाद आप देख रहे हैं कि मदारिस पर धावे किए जा रहे हैं और दहशतगर्दी के अड्डे करार दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज आशिर खानों को शहीद किया जा रहा है दिन दहाड़े। मसाजिद को हुकूमतों की निगरानी में शहीद किया जा रहा है। जहां मसाजिद इबादत की चीज होती है, जहां गैर मुस्लिम भी बारात लेके जाते हैं तो बाजा आप आवाज बंद कर लेते हैं। जहां अज़ान की आवाज बुलंद होती है तो हिंदू हज्जाम भी अपने रेडियो टीवी बंद कर लेते हैं। जहां आशिर खानों से सामने से हम गुजरते हैं तो एक 10 सेकंड रुक कर हम एहतराम हम ताजीम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह आशिर खाना है, यहाँ पे तबरुकात है, यहाँ पर आज़ादारी होती है, यहाँ पे जिक्र मुस्तफ़ा होता है, यहाँ पे जिक्र अली होता है, यहाँ पे याद हुसैन मनाई जाती है। गैर मुस्लिमीन को मैंने देखा है कि अदब एहतराम से आशिर खानों के सामने गुजरते हैं, लेकिन हुकूमत की निगरानी में आज आशिर खान दिन दहाड़े शहीद किए जा रहे हैं। आज आप देखिए कैसे हालात तब्दील होते जा रहे हैं और कैसे बदतरीन से बदतरीन हालात होते जा रहे हैं और कैसे मुसलमानों को और शरीयत को, इस्लाम को और पसंद को झिगड़ कर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे सामने है। ये एक बहुत ही फिक्रंगेज लम्हा है। आज सोशल मीडिया का दौर है। एक दौर था मौलाना तकी रज़ा आबिदी साहब कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत सारे जलसों से आपने मुखातिब किया। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी व दुनियावी इल्मी शख्सियत है, आप काफ़ी मालूमात हैं, काफ़ी आपके शागिर्द हैं और काफ़ी अच्छा कुशादा वसी क़ल्ब ज़हन व फ़िक्र रखने वाली शख्सियत है। कायद मिल्लत के जलसों से भी मुखातिब किया, रहमतुल्लाह अलमीन के जलसों से भी मुखातिब किया, कई बड़े बड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जलसे हैदराबाद में उससे भी आपने मुखातिब किया और फ़िक्र अंगेज तकारीर आपने की, कई तकारीर आपने की और उसमें यही बात आपने मुसलमानों को जोड़ने की और इत्तेहाद का पैगाम आपने दिया। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम सोचें और समझें। और उस वक्त कहना यह चाह रहा था कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था, हम अखबारात के ऊपर इंतजार करते थे कि दूसरे दिन जाकर तवील 3-4 सफ़े की तकरीर लिखें तो अखबारात वाले लेते थे। और उस वक्त भी सालार मोहतरम कहा करते थे कि मौरिख का कलम आज़ाद नहीं। यकीनन आज भी मौरिख का कलम आज़ाद नहीं है। मुदीर आला जो चाहे लिख दें, जो चाहे कट कर दे, उनकी मर्जी था। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज सोशल मीडिया आ गया, आज व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लाइव टेलीकास्ट आ गया। किसी की मजाल है तो एक जुमला निकाल के बता दे, किसी की मजाल है तो एक जुमला ऐड करके बता दे। आज मीडिया आज़ाद हो चुका है। आज ये हाल में बंद कमरे में महफिल हो रही है, सारी दुनिया के अंदर टेलीकास्ट होगी। आम और खास लोग देखेंगे इसको और पैगाम हमारा पहुंचेगा। हमारी जबान को कोई रोक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सही तौर पर हम फायदा उठाएं, इसका सही तौर पर हम फायदा उठाएं। ब्रदर जाफर साहब सदाए हुसैनी है, यकीनन वो हक की सदा लगाते हैं अखबार के जरिए, चैनल के जरिए। वो जानते हैं कितनी पाबंदियां हैं, वो जानते हैं कि कितना सेंसरशिप है, वो जानते हैं कि डीसीपी से कितने पैगामात उनको आते हैं, कितने खुतूत आते हैं कि ये क्यों बताया, ये क्यों डाला, ये क्यों बोला। आज भी है पाबंदियां, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को चाहिए कि हम आज़ादी के तौर पर इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपने पैगाम को पहुंचाएं। आज एक जुमले के ऊपर पाबंदी आयद की जा रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब की दोपहर में तकरीर होती, शाम में मीडिया आ जाती है कि अवैसी ने ऐसा कह दिया, भड़काऊ भाषण दे दिया, इस्लाम के खिलाफ, गैर मुस्लिमीन के खिलाफ कह दिया, हिंदुओं के खिलाफ कह दिया, फलां के खिलाफ कह दिया। आज बवाल मचा दिया जाता है। तो आज खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल के अंदर ये मीडिया, ये हथियार भी हमारे हाथ से निकल ना जाए। उठिए, आवाज उठाइए, आवाज पहुंचाइए, लोगों तक बात को पहुंचाइए और शऊर बेदार कीजिए। क्योंकि इत्तेहाद, सालार मोहतरम कहते थे कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। आज इत्तेहाद जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए। हम एक अच्छे माहौल में रहते हैं। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां पर मैं हमेशा कहा करता हूं जलसे में कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बन गया है। यूपी में फसाद हुआ तो हैदराबाद का रुख किया, बिहार में फसाद हुआ तो हैदराबाद का रुख किया, गुजरात में फसाद हुआ तो हैदराबाद का रुख किया, झारखंड में फसाद हुआ तो हैदराबाद का रुख किया।
कश्मीर के अंदर जुल्म हुआ तो हैदराबाद का रुख किया। सारी हिंदुस्तान ये परेशान है कि आखिर हैदराबाद का मुसलमान कैसा है, क्या दुनिया के किसी कोने में इस्लाम और सरकार की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हैदराबाद का मुसलमान सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद करता है। और यकीनन हैदराबाद के अवाम का हाथ दराज है। यहाँ पर ऐसे हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है जिनका दिल भी वसी था, कल्ब भी वसी था, नजर भी वसी थी। आज हम जिन हालत में भी होंगे हमारे मुसलमान भाइयों की इस्लाम की मदद करेंगे। कोई हैदराबाद से खाली हाथ नहीं जाता। आप सर्वे करके देख लीजिए, 4 आदमी में 3 आदमी आज बाहर के है, 1 आदमी हैदराबाद का है। पूछने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई आप कहाँ के हैं। मुलाजिमतों के लिए बिहार, झारखंड, यूपी, मैं तो कहता हूं कि मैं तालाब चंचलम या खुदपुरे का कॉर्पोरेटर था, उसको मिनी इंडिया कहा करता था मौलाना। वहां हर जगह के लोग हैं। और ताजुब की बात यह है कि यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, कलकत्ता के लोग मकानदार है, हैदराबाद किराएदार है। ये अजीब बात है। आप देखिए, वो मकानदार, उनके पास आधार कार्ड, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, उनके पास पैन कार्ड, उनके पास सब कुछ है। हमारे पास ना पैन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना हेलमेट है, ना घर के ऊपर मकान नंबर है। जी, आधार कार्ड है हमारे पास, सिर्फ उनके पास सब कुछ मौजूद है। तो आप देखिए, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी ताकत, इतना सारा हैदराबाद का इत्तेहाद रखते हुए अगर हम एक हो जाएं, खुदा की कसम, अगर हम जुड़ जाएं तो यकीन जानिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आसमान बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन हम पे तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही, जंग ही सही। हमको ये सोचने की जरूरत है, ये गौर करने की जरूरत है। मैं फिर से एक बार मौलाना सैयद तकी रज़ा साहब का अदबन व एहतरामन ममनून व मशकूर हूँ उनके साथियों का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और यहाँ पर मदु किया और चंद ख्यालात का इज़हार करने की बहैसियत तालिब इल्म मुझे कोशिश की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। बेहद ममनून और मशकूर। ये थे वजाहत अली खान साहब, बहुत उम्दा आपने तकरीर की और मैं गुजारिश करूँगा जनाब बिलाल साहब से कि वो कलाम पेश करें। जनाब